वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैलेंजेस पर्टेनिंग इन सर्विस ट्रांजिशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिकल फैक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द सर्विस ट्रांजिशन। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the critical success factors. So in that, measurement through the analyzing CSFS. So the critical factors which are to be taken in account with the service transition that we have to study in detail in this section. So as discussed earlier, identifying and defining the critical success factor helps in ensuring that process and service management activities are directed towards the मीटिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टडी किए, ठीक है, अलग अलग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सो दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी अ क्लियर वन एंड दैट कैन बी अ completed by the this service by the help of different processes are implemented in the services. So the overall service management objective is to continually improve the quality of service and align the service to changing the business requirement in cost effective way। ठीक है, तो ओवरऑल जो सर्विस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी जो है सर्विस का वो इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, एंड जो अलग अलग सर्विसेज है उनको अलाइन करना है हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, एंड उसका जो कॉस्टिंग है वो भी एक इफ़ेक्टिव वे से अरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सर्विस मैनेजमेंट के मेन या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है। सो इन दिस डायरेक्शन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रिलेटेड टू ओवरऑल सर्विस ट्रांजिशन स्टेज आर। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस है सर्विस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, तो इसमें जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है फॉर सर्विस ट्रांजिशन स्टेज, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। So in that, first point is understanding and managing the different stakeholder perspective that underpin the effective risk management within the organization and establishing and maintaining the stakeholder buy-in and commitment. Second, having clearly defined the relationship and interfaces with the program and project management। ठीक है, तो जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा उसमें जो रिलेशन होगा वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, इंटीग्रेटिंग विद द अदर सर्विस लाइफ साइकिल स्टेजेस प्रोसेस एंड डिसिप्लिन दैट इम्पैक्ट द सर्विस ट्रांजिशन। ठीक है, तो जो अलग अलग सर्विस के लाइफ साइकिल्स है या प्रोसेसेस है या डिसिप्लिन है उनको हमें इंटीग्रेट करना है एक सर्विस ट्रांजिशन में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरेंट डिपेंडेंसीज अमॉन्ग द legacy system and the new technology and human element that result in unknown dependencies and risky to change, creating and maintaining a new and updated knowledge in the form that people can find and use। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है एंड मेंटेनिंग अ न्यू फॉर्म दैट इज़ अ अपडेटेड नॉलेज in that form the people can be use that knowledge। So good service management and IT infrastructure tools and technology are to be used in the service। So being able to understand the service and technical configuration and their dependencies। So establishing a culture that enables the knowledge to be shared freely and willingly। So these are the some challenges or the critical success factor related to the service transition stage। Also demonstrating the improved customer and user satisfaction rating during the service transition। ठीक है, तो जो भी सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस होगा उसमें जो भी इम्प्रूव कस्टमर एंड यूज़र का जो सेटिस्फैक्शन होगा तो उसका रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना नेसेसरी है ड्यूरिंग द सर्विस ट्रांजिशन स्टेज। ऑल्सो demonstrating the benefits of establishing and improvement। Next one is being able to communicate the organization attitude to risk and approach to risk the management more effectively during the service transition activities। So in next slide we let us look the risk of the service transition। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन
रिगार्डिंग द रिस्क एंड द अप्रोच टू द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको इफेक्टिवली यहाँ पे परफॉर्म करना है सर्विस ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जो रिस्क इन्वॉल्व है सर्विस ट्रांजिशन में उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। So next topic of syllabus is the risk. So risk associated with the service transition that we have to study in this section. So implementing the service transition practice should be made without the recognizing the potential risk to service currently in transition, those releases that are planned, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा सर्विस ट्रांजिशन प्रैक्टिस का, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट मेड विदाउट रिकग्नाइजिंग द पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। तो रिस्क को कंसीडर करके यहाँ पे प्लानिंग होगा सर्विस ट्रांजिशन का, ठीक है, कि जो सर्विसेज करंटली यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोसेस में है, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी अ प्लान वन। सो बेस लाइन assessment of current service transition and plan project will help the service transition to identify the implementation risk, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट सर्विस ट्रांजिशन एंड प्लान प्रोजेक्ट्स है, सो दैट हेल्प्स द सर्विस ट्रांजिशन फॉर आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटिंग रिस्क में जो रिस्क फैक्टर होंगे सर्विस ट्रांजिशन में दैट शुड बी मैनेज विद द प्लान प्रोजेक्ट। सो दिस रिस्क माइट बी इंक्लूड the first change in accountabilities, responsibilities, practices of the existing project that demotivate the workflows, and second one alienation or isolation of some key support and operations staff, additional unplanned cost to service in transition, resistance to change and by passing the processes due to pre-receive bureaucracy. So as we aware the risk involved, let us understand the factor that affects the approach to the service transition in the next slide, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग रिस्क है, ठीक है, तो उसका हमने यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। मीन्स अलाइटेशन और आइसोलेशन ऑफ सम की सपोर्ट एंड ऑपरेशन स्टॉप एंड अनप्लान कॉस्ट टू द सर्विस इन ट्रांजिशन। तो जो भी सर्विस ट्रांजिट होगा दैट कैन बी ए न्यू और प्रीवियस सर्विस, ठीक है। तो उसको ठीक से प्लान करना पड़ेगा, अगर उसका प्लानिंग नहीं होगा सो दैट विल इंक्रीज द बजट और कॉस्ट फॉर दैट सर्विस, ठीक है। ऑल्सो जो रेजिस्टेंस होगा चेंज एंड बाईपासिंग द प्रोसेस, सर्विस ट्रांजिशन में जो अलग अलग प्रोसेस है उनको अगर बाईपास कर दिया है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा सर्विस ट्रांजिशन में, ठीक है। तो ये अलग अलग रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, इन द सर्विस ट्रांजिशन। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द सर्विस ट्रांजिशन अंडर डिफ़िकल्ट कंडीशन, ठीक है। तो सर्विस ट्रांजिशन के लिए जो अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट कंडीशन में किस तरह से सर्विस ट्रांजिशन होगा, ठीक है, इन न्यू और द ओल्ड सर्विसेज, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो इन दैट फर्स्ट विल स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द अप्रोच ऑफ सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस ट्रांजिशन के लिए जो फैक्टर्स है दैट कैन बी अफेक्टेड, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में। सो इन सम सर्कमस्टेंसेस सर्विस ट्रांजिशन विल रिक्वायर अंडर अ टिपिकल और डिफ़िकल्ट कंडीशन, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस में या सर्कमस्टेंसेस में जो सर्विस ट्रांजिशन है, ठीक है, तो वो एक टिपिकल सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो उस तरह के सिचुएशन का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट जो है शॉर्ट टाइम स्केल, ठीक है, मीन्स इन मिनिमम टाइम वी हैव टू ट्रांजिशन द सर्विस, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है या डिफ़िकल्ट कंडीशन है। सेकंड रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंसेस, ठीक है, मीन्स जो बजट डिसाइड किया या प्लान किया है सर्विस ट्रांजिशन के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड बजट है, ठीक है, या फाइनेंस है। तो उस कंडीशन में ये जो है एक डिफ़िकल्ट कंडीशन है सर्विस ट्रांजिशन के लिए। थर्ड वन इज द रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, दैट इज़ नॉट इनफ पीपल और लैक ऑफ टेस्ट इन्वायरमेंट्स, इनएडिक्वेट टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो सर्विस ट्रांजिशन के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स ट्रेन पीपल्स आर नॉट अवेलेबल और लैक ऑफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, सर्विस टेस्टिंग के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, जो टूल्स रिक्वायर्ड है दे आर आल्सो इनसफिशिएंट, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में भी सर्विस ट्रांजिशन जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ एंटिसिपेटेड स्किल सेट, ठीक है, तो सर्विस ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, तो वो यहाँ पे नेसेसरी या प्रोवाइड होना चाहिए, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट कंडीशन। इंटरनल पॉलिसीज डिफ़िकल्टीज, स्टाफ डिसइंटेंटिवनेस, रिडंडेंसी, ठीक है, देन डिफ़िकल्ट कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ कॉन्फ्रंटेबल मैनेजमेंट स्टाइल, इंटरनल राइवल्स एंड कॉम्पिटिवनेस, ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे डिफ़िकल्ट कंडीशन है। ऑल्सो एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज सच एज वेदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पोस्ट डिज़ास्टर, ठीक है, तो ये सब एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, सो दैट कैन बी ऑल्सो अफेक्टेड फॉर द service transition. So clearly some of these circumstances overlap with the continuity planning and many of the approaches set out in the service design publication that will be relevant to the successful transition in difficult circumstances. So in continuation to this factor, let us discuss the test of ST approach in the next slide. So here are some critical situation in service transition stage that dealing with the such situation, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सिचुएशन है सर्विस ट्रांजिशन स्टेज के, ठीक है, उसका लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट इज़ व्हेन स्पीड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी और स्मूथनेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस ट्रांजिशन का जो स्पीड है वो इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू द एक्यूरेसी। सेकंड वन, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। थर्ड वन, safety critical services and high risk environment, and fourth one is the working with difficult customer. We'll discuss each of the situation in coming slide. So this is the effectively risk management decision and general risk management principle apply to some of the key factors to assist with the delivering success in this context are: first one is the empowerment with the staff given the authority to take the appropriate level of risk. In the volatile industries, service transition must act in the way that reflect the corporate risk culture and not suppress the undetermined business risk decision. So need to know the absolute cutoff date or time that service transition must deliver by is too often either safety margins are built in. Second one, deciding which component to be transit service must be available at the cutoff date and which could be added later. Third, how separable are the components and which are the dependencies, what element might be required although not initially on the essential list. And last one, which user or customer or location must be in place at the cutoff date and have to be decided. Moving on, let us discuss the restricted user in the next slide. So accuracy is typically taking priority over the speed. तो यहाँ पे जो सर्विस ट्रांजिशन में एक्यूरेसी होना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्पीड. सो मोर रिगरस टेस्टिंग, लॉन्गर टाइम पीरियड्स एंड मोर डिटेल डेटा कलेक्टेड आर मेंटेन विद इन द दिस CMS, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्टिंग होगा सर्विस का, ठीक है, एंड मोर डेटा कैन बी कलेक्टेड टू मेंटेन द दिस CMS सर्विस. सो मेजरिंग ऑफ सेफ्टी एक्यूरेटली एक्सेस बाय द एक्सेप्टेड अथॉरिटी, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स होंगे रिगार्डिंग द सर्विस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द authorities or higher authorities, setting the sign of authority and ensuring those responsible are not over influenced by the inappropriate pressures such as concern about the company profit or bonuses as opposed to the risking human life. So in extreme circumstances, ensuring more than one individual must be involved in certain action to be taken. So typically a procedure for launching a nuclear weapon requires the simultaneous confirmation by the two trained officers, ठीक है, तो कुछ extreme circumstances में more than one individual must be involved in the
प्रोसेस, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जो पर्सन से वो इन्वॉल्व होना चाहिए एक्सट्रीम कंडीशंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करना है, ठीक है, सो उस कंडीशन में इट इज़ कन्फर्म बाय द 2 ट्रेन ऑफिसर। Then next is of course there is no such things as a bad customer really, but often there are customers who are unclear to their role as a customer, so act in a way that prevents rather the support successful implementation. So example include customers who first one feel the need to get too involved in detail how things are done instead of judging by service delivered, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर के कुछ जो नेचर से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स है, दे फील द नीड टू गेट इन्वॉल्व इन डिटेल हाउ थिंग्स आर डन, ठीक है। तो जो सर्विस उनको प्रोवाइड किया गया है वो सर्विस किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। दे हैव टू know that, so instead of judging by service delivered, so are not able to deliver the decision or choose the option to suit their business need, ठीक है। तो जो बिजनेस के नीड से कस्टमर के अकॉर्डिंग टू दैट द सर्विस विल बी डिलीवर टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। नेक्स्ट वन, डू नॉट मेक staff and resources available to facilitate the effective service transition. For example, providing data and staff to access the transition service or to effect under testing or user testing, and this kind of situation can often be improved by awareness and education of first one customer, user, transition staff, account management working with the customer, careful budgetary control, so the customer can see the value returning for their investment of staff, clear and accurate documentation, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टाफ एंड रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है, सो दैट कैन बी अवेयर अबाउट द सिचुएशन of the service. So for example providing the data and staff to access the transition service, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन सर्विस का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। एंड टू इफेक्ट द यूज़र टेस्टिंग, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव बाय अवेयरिंग द एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टमर्स को, यूज़र्स को या ट्रांजिशन स्टाफ को अवेयर कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो उसका यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। सो डेमोस्ट्रेट द वैल्यू थ्रू द प्रॉपर बजटिंग एंड risk of or investment, so that is ROI. So this summarize the module on CSF, challenges and risk in the service transition, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टडी किया कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द सर्विस ट्रांजिशन एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर विच आर associated with this service transition. So that will end this challenges and service transition risk topic. So next टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द पॉलिसीज़ फॉर सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्या स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का फॉर दिस सर्विस ट्रांजिशन टूवर्ड द यूज़र और कस्टमर, तो उसका हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। सो सर्विस ट्रांजिशन इज सपोर्टेड बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द सर्विस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो जो सर्विस स्ट्रेटेजी से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिराइव किया है, ठीक है, तो ये सब सपोर्ट होने चाहिए सर्विस ट्रांजिशन पॉलिसीज़ में। So this basis and understanding of the service is how added the value created for the customer from the foundation of the service transition, ठीक है। तो जो बेसिक फाउंडेशन है सर्विस ट्रांजिशन का, उसमें किस तरह से हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं फॉर द कस्टमर और द फॉर देयर बिजनेस, so that can be utilized. So utility describe the ability of service to be used and contains the business outcome expected by the customer. So new service और optimization of existing service, तो जो न्यू सर्विस या किसी सर्विसेज में एग्जिस्टिंग सर्विस में अपडेशन किए रिगार्डिंग द चेंजेस बाय द कस्टमर, सो
that changes in that service will give the better profit expected by the customer. Next one, the warranty or business guarantee by contrast is the assurance that the service meet the stipulated specification. तो जो भी वारंटी या गारंटी प्रोवाइड किया गया कस्टमर को रिगार्डिंग द सर्विस, so that can be a meet with the stipulated specification that include the availability, capacity, continuity, disaster situation, and also in security respect. So the following aspects are the underlying and fundamental principle of the service transition phase. तो सर्विस ट्रांजिशन फेज के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज द definition and implementation of formal service transition policy with clear reference to the target setting and how to deal with the variance, supplemented by the orientation toward the superordinate IT governance model. Second one, adhere to standardized methods and procedures for service in implementation of all challenge in order to maintain the stability and keep the timetable. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, सो दैट कैन बी अ मेंटेन सो दैट स्टेबिलिटी एंड जो टाइम टेबल है, ठीक है, फॉर दिस सर्विस ट्रांजिशन, सो दैट कैन बी अ फॉलो. थर्ड वन, मैक्सिमम रीयूज़ ऑफ प्रोसेस, ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोसेस है उनको रीयूज़ किया जा सकता है यहाँ पे. एंड द सिस्टम बाय अप्लाइंग द फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड. Next is fostering the relationship with the stakeholder, awareness of keeping the expectation and early involvement in the life cycle of the service. Knowledge transfer system as a decision making tool. तो knowledge transfer system का हम use कर सकते हैं as a decision making tool in the organization. Effective control and discipline lead to the smooth implementation of the service changes. जो effective control and discipline है, ठीक है, ये हेल्प करेगा जो सर्विस हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन में. नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर रिलीज एंड डिलीवरी पैकेज. सो दीज आर डिलीवर्ड टू प्रोडक्शन रेडी एंड टेस्टेड. ठीक है, तो जो सर्विस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा उसके बाद उसको प्लानिंग करना पड़ेगा फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेज टू द कस्टमर. सो फॉर दैट पर्पज फर्स्ट इन प्रोडक्शन दैट सर्विस विल बी अ tested according to the needs of the customer. Next one is the monitoring of potential course adjustment so that it can be promptly identified within the clear boundaries and corresponding instruction given to the employees. Then proactive provision of specialized resources form the optimum utilization with the service transition phase in order to avoid the delays in delivery. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोएक्टिव प्रोविज़न होगा जो कि स्पेशलाइज रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे या यूटिलाइज़ कर रहे सर्विस ट्रांजिशन फेज़ में, ठीक है, तो उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है सो दैट जो डिलेज होंगे डिलीवरी ऑफ पैकेजेस में सर्विसेज के उसको अवॉइड किया जा सके. सो इंश्योरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रोएक्टिवली इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ न्यू एंड मॉडिफाइड सर्विसेज. तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं मॉनिटरिंग एंड जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है न्यू एंड जो previously modified services है. So implementing by and visible support of the senior management ensures the cut through potential throughout the organization. So this will complete the policies for this service transition. So that will end this unit number 3. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे ITSM का. सो थैंक यू.